So welcome to the students. This is another very important, you can say, topic, that is the fully developed flow. That we have to understand that what is fully developed flow या fully developed flow हम क्या है, किसको कहते हैं, that we have to understand here. So what is there? I have taken, you can say, pipeline है. This is your pipeline, right? And this is the center of the pipe, which I have shown here. Understand it. Now we are discussing fully developed flow. अब देखिए, when the fluid will enter in the pipe, initially you can say at the entrance of the pipe and up to some length or distance of the pipe, the velocity profile is not well defined. जो आपका इनिशियल जहाँ से जब पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, तो इनिशियली क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो वेलोसिटी प्रोफाइल उसका वेल डिफाइंड नहीं होगा. रीज़न क्या है कि जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनिशियली जो आपका जो फ्लो है, दैट इज़ नॉट फुली डेवलप्ड फ्लो, दैट इज डेवलपिंग रीजन. यू कैन से फुली डेवलप नहीं है, बट दे आर डेवलपिंग. तो एक्चुअली अप टू सम डिस्टेंस वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा वेल डिफाइंड कब होगा? जब आपका फ्लो जो है फुली डिफाइन होगा, फुली डेवलप होगा. यू अंडरस्टैंड? जब आपका फ्लो फुली डेवलप होगा, इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो आई एम टेकिंग हियर, तो आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, आइदर यू टेक दिस सेक्शन और एनी अदर सेक्शन, you will find that your velocity profile is well defined. So this is very important concept to understand, that initially when the liquid enters in the pipe or the water हम ले या कोई भी liquid fluid ले लें, when it enters in the pipe, तो initially or you can say at some distance, at some length, उसको एक थोड़ा सा लेंथ कवर करना पड़ेगा, उसको सम लेंथ कवर करना पड़ेगा, तब आपका जो फ्लूइड है वो क्या होगा? फुली डेवलप होगा. तो इसमें दो चीज़ें आ गई. फर्स्ट चीज़ क्या थी कि ये जो आपका रीजन है, ये जो आपकी लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द एंट्रेंस लेंथ. LE इज द एंट्रेंस लेंथ. जहां तक जो आपका लिक्विड होगा, जो आपका फ्लूइड होगा, दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड. और यू कैन से दैट LE इज द लेंथ which we have to require for the fluid to become fully developed flow. You understand? तो इसमें एंड द रीजन, ये जो आपका रीजन होगा जहां पे आपका liquid is not fully developed, flow is not fully developed, that region is called the developing region. तो पहला आपका क्या है इसमें? developing region. What is your developing region? developing region क्या है? इसमें the velocity profile of the liquid flowing in the pipe, the velocity profile of fluid in the, ये कर लो, पूरा लिख लो, flowing through the pipe will not be well defined.
will not be well defined, right? समझ आया? सेकंड आप इसमें ये कह सकते हैं एंट्रेंस लेंथ। एंट्रेंस लेंथ भी हम लिख लेते हैं। एंट्रेंस लेंथ क्या है? एंट्रेंस लेंथ, the length of the pipe required to get the velocity profile well defined. लेंथ ऑफ द पाइप क्या है कि हमें इनिशियली कितना लेंथ चाहिए कि उसके बाद हमारा जो लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल है विच इज फ्लोइंग इन द पाइप दैट इज वेल डिफाइंड। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस या लेंथ अप टू विच इन द पाइप द वेलोसिटी प्रोफाइल इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वो जो रीजन होगा दैट रीजन इज कॉल्ड द, तो एंट्रेंस लेंथ होगा द लेंथ required to get the flow, fully developed flow, fully developed, the velocity here, the velocity profile is well defined. What do you mean by the well defined? अब जहां पे देखिए आप जो velocity profile है, that is the velocity profile of the laminar flow when the flow is flowing through the pipe. The velocity profile is not like this. This is not the exact velocity profile of the laminar flow, right, which is passing through the pipe. तो velocity profile तो हमारा क्या है? ये velocity distribution in case of the laminar flow when it is flowing through the pipe. The velocity distribution जो आपका प्रोफाइल बनेगा that is parabolic बनेगा. You understand? This is the exact velocity profile when the flow is laminar. That is the parabolic velocity profile here. But initially what happens that the flow is divided in two regions, right? जो आपका flow होगा that is divided in two regions. One region is called the developing region and the other region is called the developed region. You understand? So initially जो आपको रीजन मिलेगा up to some length of the pipe, that is your developing region. Developing region का मतलब क्या है? What is the meaning of the developing region here? Developing region is that the fluid particles, they are not moving in the streamline. One thing is there. They are not moving in the streamline means in x directions. They are having the random velocity. You can say इनिशियल पोर्शन तक जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? रैंडम होगी. वो वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी. इन एक्स डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो एक फ्लक्चुएशंस यू कैन से इन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शंस, वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस मिलेंगी इनिशियली अप टू सम डिस्टेंस, अप टू सम लेंथ ऑफ द पाइप. दैट पार्ट विच इज अप टू सम लेंथ ऑफ द पाइप, that region, that part is called the developing region. You understand here? और developing region का first thing is that you will not get the velocity profile, exact velocity profile. That means laminar flow का जो exact velocity profile है, what is that? That is parabolic in nature. तो वो हमें parabolic in nature नहीं मिलेगा. You understand that? वो हमें parabolic nature नहीं मिलेगा. आप देखिए ये आपका developing region है, तो मैं कहता हूं कि ये आपका पॉइंट ए है, ये फ्लूइड पार्टिकल एट ए है, ये फ्लूइड पार्टिकल आपका बी के ऊपर है, ये फ्लूइड पार्टिकल आपका सी के ऊपर है, दिस फ्लूइड पार्टिकल एट डी एंड दिस फ्लूइड पार्टिकल एट ई. यू अंडरस्टैंड?
So you can say that I have taken fluid particles at A, B, C, D and E. The fluid particle which is at A and E, they are on the wall of the pipe, right? They are on the wall of the pipe. तो इस केस में जो वेलोसिटी आपकी होगी वो क्या होगी? इस केस में वेलोसिटी आपकी ये क्या होगी? जीरो होगी, और इसकी भी जो वेलोसिटी होगी ये आपकी क्या होगी? जीरो होगी. यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज दे आर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? जीरो होगी. नो स्लिप कंडीशन इज देयर. सो but the fluid particles which is at B, C and D, here you can say they are having the random velocity. They are having the random velocity. Fluid particles at B, C and D, they are having the random velocity. So due to that, what happens that you will not get the exact velocity profile. Same velocity profile आपको नहीं मिलेगा. Well defined velocity profile नहीं मिलेगा. सो ये जो रीजन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, जिसका मैंने लेंथ एल ई लिखा है, दिस इज कॉल्ड द डेवलपिंग रीजन. यू अंडरस्टैंड? ये क्या है आपका? डेवलपिंग रीजन है. तो डेवलपिंग रीजन में क्या होगा जी? आप डेवलपिंग रीजन में तो मैंने आपको लिखा था द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप विल नॉट बी वेल डिफाइंड. एंट्रेंस लेंथ की भी डेफिनेशन लिखी थी. द लेंथ रिक्वायर्ड टू गेट द फ्लो फुली डेवलप और द वेलोसिटी प्रोफाइल इज वेल डिफाइंड. जिस लेंथ के बाद हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल वेल डिफाइंड हमें मिलेगा, तो वो जो आपकी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द एंट्रेंस लेंथ. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड द एंट्रेंस लेंथ. सो एंट्रेंस लेंथ यू कैन से द लेंथ ऑफ द पाइप. तो इसका मतलब ये हुआ कि द लेंथ ऑफ द पाइप इन द डेवलपिंग रीजन, दिस इज कॉल्ड द जो लेंथ है पाइप की डेवलपिंग रीजन तक, वो क्या है? द लेंथ ऑफ द पाइप, द लेंथ, इसको हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एंट्रेंस लेंथ को, द लेंथ ऑफ द पाइप अप टू developing region the length of the pipe up to developing region is known as entrance length. Is known as, इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस लेंथ बोलते हैं. जहां तक चीजें आपको क्लियर होगी, क्या था? द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप. इनिशियली योर फ्लो इज नॉट वेल डिफाइंड, और यू कैन से योर फ्लो इज नॉट फुली डेवलप्ड फ्लो. अब फुली डेवलप्ड फ्लो और developing region में what is the difference? How we can say that this is not fully developed flow and this is fully developed flow? That we can see from the velocity profile. Initially you can say up to some distance or up to some length of the pipe, when the fluid is flowing in the pipe, the velocity profile, we will not get the well defined velocity profile. अब रीजन क्या? वाई वी विल नॉट गेट द वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल मीन्स, एज जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव जस्ट टेकन द 5 पॉइंट्स हियर, पॉइंट ए ऑन द बॉल, पॉइंट ई ऑन द बॉल, बी, सी एंड डी. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट द पॉइंट ए एंड पॉइंट ई, these are on the ball, so thus their velocity is 0. You understand? What? Initially the fluid particles other than this A and E at any point, this I have taken only 3 points, but at any point of the region you can say those fluid particles are not having the uniform velocity. You understand? They are not moving in the streamline.
they are not having, initially I am saying, they are not having the uniform velocity, they are not moving in the streamline. So you can say at some distance or at some region or at some part of the pipe, the flow is not in the streamline. The fluid particles, they are having the random velocities. Random velocity means the fluid particles, they are not flowing in the straight line, streamline, what they are just moving zigzag motion, you can say, right? तो random velocity होगी towards bi-direction, towards z direction, but as the bulk of flow we are taking in the x direction. जो हमारा फ्लो है वो क्या है, x डायरेक्शन है, बट ये जो रीजन होगा, अप टू दैट रीजन we will get, we will see, we will find that fluids which is flowing, they are having the random velocity. You understand? They are not having the same velocity. तो इसका क्या इफेक्ट होगा? What happens to that? You can say we will not get the well-defined velocity profile. जो कि well-defined velocity profile आपका laminar flow में क्या था? That is your parabolic. You understand? So we will. अब ये जो पाइप का ये जो रीजन है, जिस रीजन में हमें well-defined velocity profile नहीं मिला, that region is called the developing region. You understand? उस रीजन को हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग रीजन कहते हैं. You understand? और इसके बाद वाला जो रीजन होगा पाइप में, अब आपका फ्लो जो है दैट इज फुली डेवलप्ड फ्लो. फुली डेवलप्ड फ्लो का मतलब क्या है? मींस एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप, एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लो is well defined. Means you will get the parabolic flow at any section, at any cross section. तो पैराबोलिक हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल तभी होगा जब हमारा फ्लो जो है प्योरली इन एक्स डायरेक्शन होगा, स्ट्रीम लाइंस में होगा, लैमिनार में फ्लो करेगा, कोई एक्स वाई डायरेक्शन रैंडम वेलोसिटीज उसमें नहीं होंगी. मीन्स रैंडम वेलोसिटी इन दैट केस दैट इज जीरो, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इन जीरो. तो ये जो आपका फ्लो है, ये जो आपका रीजन है, जिस रीजन के ऊपर वी विल गेट द वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल, दैट रीजन इज कॉल्ड द फुली डेवलप्ड रीजन. एंड द फ्लो वी कैन से the flow in that region, that is fully developed flow. You understand this? आपको समझ आया कि what is fully developed flow? तो fully developed flow का अगर हम conclusion इसमें लिखें, so fully developed flow what is your fully developed flow? सो फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, द फ्लूइड पार्टिकल्स are moving in stream lines or in lamina, right? Or
इन लैमिना। पहली बात तो ये हो गया। सेकंड, जब सेकंड इसमें लिख लेंगे एट एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन हम ले लेंगे फुली डेवलप्ड फ्लो रीजन में, एट एनी क्रॉस सेक्शन इन द fully developed region। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में आपके जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीमलाइन में मूव करेंगे, पहली बात। दूसरा, फ्लूइड पार्टिकल्स दे डोंट हैव द रैंडम वेलोसिटीज। अब इसमें नो रैंडम वेलोसिटी, रैंडम वेलोसिटी इसमें फ्लूइड पार्टिकल्स की नहीं होगी। रैंडम वेलोसिटीज, तो रैंडम वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। इस केस में वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। ये सेकंड। थर्ड, आप कह सकते हैं in fully developed flow क्या होगा? The velocity profile is same at each and every cross section। तो velocity profile हमारा क्या होगा? velocity profile इज पहला होगा वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल इज वेल डिफाइंड एंड सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन। Velocity profile is well defined and same at every cross section of developed region। जो हमारा developed region होगा उसमें आपका velocity profile well defined होगा। You understand? तो ये चीजें समझ आ गई कि fully developed flow क्या है, और ये भी आपको समझ आ गया कि पाइप में जो फ्लो होता है वो फ्लो आपका डोंट थिंक दिस थिंग दैट इनिशियली जब पाइप में फ्लो होगा तो स्टार्टिंग में फ्लो आपका बिल्कुल सेम होगा, कांस्टेंट होगा, वैसा नहीं है। उसमें आपको कुछ डिस्टेंस चाहिए, यू नीड सम डिस्टेंस, और यू कैन से दैट द फ्लूइड और लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप दैट रिक्वायर्स सम डिस्टेंस टू बिकम द फ्लो फुली डेवलप्ड। यू अंडरस्टैंड? सो before that distance, before that length of the pipe, the region which we are having, that region is called the developing region, because why it is said as a developing region means the flow is not developed here। फ्लो जहां पे डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप का मतलब क्या है कि फ्लो का जो एक हमारा स्टेटस है, दैट एज वी आर सेइंग दैट द फ्लो इज लैमिनार फ्लो इज पासिंग थ्रू द पाइप, राइट। सो फ्लो तभी डेवलप होगा जब उसका हम किसके साथ चेक करेंगे? वेलोसिटी प्रोफाइल के साथ चेक करेंगे। और जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल वेल डिफाइंड नहीं है, इस रीजन में यू कैन से ये जो आपका डेवलपिंग रीजन है, देयर यू विल नॉट गेट द वेलोसिटी प्रोफाइल वेल डिफाइंड। सो दिस रीजन इज डेवलपिंग रीजन एंड दैट रीजन इज कॉल्ड द डेवलप रीजन। डेवलप रीजन में ये जो 2-3 कंडीशंस हैं, ये आपको दिया मैंने, वो क्या था कि फुली फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग इन स्ट्रीमलाइन। पहली बात है, they are not moving in y direction, they are not moving in z direction, they don't have any random velocity at all, so they are simply moving in x direction streamline, right? तो fully developed flow में क्या होगा? What happens there? Velocity profile is well defined, and if you want to check the velocity profile at any cross section of the pipe of the developed region, you will get the same velocity profile. You understand? You will get the same
is defined and same at every cross section of the developed region. You understand? So जहां तक तो चीजें आपकी क्लियर होगी। आप देखिए आगे, आप देखिए इसमें कुछ कंडीशंस देखेंगे। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल्स, जो चीजें आपको बताई गई। जो तो एज द फ्लूइड आर लिक्विड, एज द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू the pipe, as the fluid is flowing through the pipe, तो in x डायरेक्शन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल तो x डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, in x डायरेक्शन, राइट। तो फ्लूइड जो है पाइप में किसमें x डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अगर मैं फुली डेवलप्ड रीजन की बात करूं, फुली डेवलप्ड रीजन, तो फ्लूइड तो जहां से ही आपका एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। बट व्हेन द फ्लूइड एंटर्स, और यू कैन से व्हेन वी से व्हेन इट एंटर्स इन द फुली डेवलप्ड रीजन, तो फुली डेवलप्ड रीजन में आई विल से दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड in the x direction is x, suppose like it is moving in the streamline। ये जो fully developed region का तो that I told you, तो आपका ये हो गया the velocity of fluid in x direction से आप कहते हैं यार u is the velocity of the fluid in x direction, right? अब component of the velocity in by direction लिख लेते हैं यहां पे। मीन्स जो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अगर बाई डायरेक्शन की बात करूं मैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन से b, और इसी तरीके से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन से w, राइट। अब देखिए ये फुली डेवलप्ड रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा था कि इन द फुली डेवलप्ड रीजन द फ्लो इज ओनली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन इन स्ट्रीम लाइन, मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी रैंडम वेलोसिटी। तो रैंडम वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन है वो क्या है, b आपकी जीरो होगी इस केस में। यू अंडरस्टैंड दैट? और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इन z डायरेक्शन है वो भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। बट ये जो वेलोसिटी आपकी x डायरेक्शन में है, इसमें बिकॉज द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द x डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी तो u है, वो आपका कंपोनेंट होगा। तो यू कैन से द u डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहला कंडीशन तो इसमें ये आ गया, इन फुली डेवलप्ड फ्लो में तो इन फुली डेवलप्ड फ्लो फर्स्ट क्या आ गया, u डज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो एंड w इज इक्वल टू जीरो। यू अंडरस्टैंड, राइट?
बट अच्छा, सेकंड क्या है इसमें, मुझे बताइए। इन द एक्स डायरेक्शन, एज द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द एक्स डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है आपकी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इन एक्स डायरेक्शन। ये भी हम प्रूव करेंगे, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इन द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो आप कह सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज डज नॉट इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू del u upon del x, this is equal to 0. del u upon del x, this is equal to 0. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी तो है x डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। जो वेलोसिटी आपकी इस रीजन में होगी वही वेलोसिटी आपकी इस रीजन में होगी। ये हम बाद में चीज़ें ड्राइव करेंगे। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग हियर, so we will get this condition u does not equal to 0, b equal to 0 and w equal to 0. You understand why b equal to 0 and w equal to 0? As मैंने जो आपको conditions दिया था, in that condition we don't have any random velocity here. In fully developed flow, the fluid particles, they are not having any random velocity, means velocity in y direction and velocity in z direction is 0. Fluid is simply flowing in the streamline in x direction. तो b आपका 0 है, w आपका 0 है और आपका del u upon del x is equal to 0. You understand? ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए फुली डेवलप्ड फ्लो की बात करते हैं हम। दिस इज योर फुली डेवलप्ड रीजन से, ये जो आपकी सेंटर लाइन वेलोसिटी है, सपोज आई विल से दैट ये सेंटर लाइन, ये जो वेलोसिटी एट सेंटर लाइन है, दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। और अगर इसके ऊपर सेंटर लाइन के ऊपर जाता हूं मैं, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वेलोसिटी आपकी है, ये मैं कहता हूं 4 मीटर पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड? ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल टू द सेंटर ऑफ द पाइप, दैट इज डिनोटेड बाई राइट। सो इन फुली डेवलप्ड फ्लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन फुली डेवलप्ड फ्लो, लेट अस से दैट द सेंटर लाइन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड is 7 meter per second. But when we go up to bi-direction, जब हम bi-direction में मूव करेंगे, because this is your bi-direction, this is your bi-direction, ये सारा ये और ये bi-direction है सेंटर लाइन से। So when we will move towards the bi-direction, तो आपने देखा कि जहां पे वेलोसिटी आपकी 7 मीटर पर सेकंड थी, तो जहां पे वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकंड है। अब ये कैसे है? आपने इतने लेक्चर पीछे पढ़े आपने लैमिनार फ्लो के, टर्बुलेंट फ्लो के, तो वहां पे क्या बताया गया था कि सेंट्रल लाइन जो वेलोसिटी है इन द पाइप, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। सेंट्रल लाइन वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जो वेलोसिटी आपकी बॉल के ऊपर है, द वेलोसिटी ऑन द बॉल, दैट इज 0। और जैसे जैसे एज वी गो ऑन मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर लाइन, जैसे जैसे हम बाई हमारा सेंटर लाइन की तरफ हम मूव करते जाएंगे, हमारी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। यू अंडरस्टैंड? और सेंटर लाइन में आके हमारी वेलोसिटी जो फ्लूइड की है, दैट बिकम्स मैक्सिमम। दिस वी हैव रेड ऑलरेडी। सो आई एम कंसिडरिंग दैट द सेंटर लाइन वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड, and as we keep on going towards the ball, means towards y direction, definitely the velocity keep on decreasing. You understand?
तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। से द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ, एज वी आर ऐसे करो, सो कह सकते हैं एज वी आर कंसिडरिंग द fluid particle in bidirection, the x डायरेक्शन वेलोसिटी, जो आपकी x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, राइट, द x डायरेक्शन velocity changes. You understand that what is x direction velocity? देखिए ये जो आपकी 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, दिस इज योर x डायरेक्शन वेलोसिटी। फ्लूइड तो आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, दिस इज x डायरेक्शन वेलोसिटी, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी बाई डायरेक्शन वेलोसिटी एंड z डायरेक्शन वेलोसिटी। लेकिन व्हेन वी मूव अप टुवर्ड्स द ball of the pipe, or you can say that when we are taking any fluid particles towards this bidirection, center line से bidirection में कहीं भी आप fluid particles ले लें, कहीं भी fluid particles आप लेंगे, you will find that velocity जो आपकी x direction velocity होगी वो क्या होगी, वो चेंज करेगी, क्योंकि ये जो 4 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी लिया, दिस इज आल्सो इन द एक्स डायरेक्शन। फ्लूइड तो सारे का सारा लैमिना में इसी तरीके से मूव कर रहा है, यू अंडरस्टैंड, सो दैट इज आल्सो द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। सो व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एज वी कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स द वाई डायरेक्शन, द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस, राइट। फर्स्ट व्हेन इट इज ऑन द सेंटर लाइन, द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी is 7 मीटर पर सेकंड, एंड व्हेन वी कीप ऑन going towards the bidirection, right, or we have taken the fluid particle above the center line towards the bidirection, the center line, the x direction velocity, which is 4 meter per second, now it is not 7 meter per second. So it means that the x direction velocity that changes here in the y direction. You understand? अगर हम बाई डायरेक्शन की तरफ मूव करें तो हमारी जो x डायरेक्शन वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। सो दस हम क्या कह सकते हैं, x डायरेक्शन वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, दस डेल u अपॉन डेल y डज नॉट इक्वल टू 0। वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू y वो हमारी सेम नहीं होगी, वो क्या होगी, हमारी चेंज होगी, तो दैट डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, सिमिलरली अगर फ्लूइड पार्टिकल कोई जेड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी वहां पर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, वहां पर भी वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। सो यू कैन से del u upon del z, this is equal to 0, this does not equal to 0, you understand, del u upon del z, that is does not equal to 0। तो जहां से हमें एक और कंडीशन मिली, ये आप नोट कर लीजिए। सो यू कैन से
In fully developed flow, राइट, क्या होगा? डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल y मीन्स u वेलोसिटी x डायरेक्शन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन चेंज होगी, डज नॉट इक्वल टू 0, एंड डेल u अपॉन डेल. So this is another condition of the fully developed flow. ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके कंसेप्ट हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको मैं जहाँ पे सेपरेट करके दे रहा हूँ, दिस आई हैव अंडरलाइन, आप इसको नोट कर लीजिए. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अनदर कंडीशन. सो दिस इज योर अनदर कंडीशन ऑफ द fully developed flow. ये हो गया जहां तक. अब हम प्रेशर का बिहेवियर जो है अंडरस्टैंड करेंगे इन द फुली डेवलप्ड फ्लो. सो सेकंड चीज हम प्रेशर देखते हैं, प्रेशर की क्या पोजीशन है. लेट अस अंडरस्टैंड the behavior of, let us understand the behavior of pressure in fully developed flow, right? तो प्रेशर का बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द fully developed flow. इसको बिठा देंगे अब. ये आपका सपोज क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, वन मैंने फुली डेवलप्ड फ्लो में लिया, और ये आपका क्रॉस सेक्शन सेकंड, राइट. इस साइड आप प्रेशर ले लीजिए, ये आपका क्या है, प्रेशर है. अब देखिए, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है
तो जहाँ पे देखिए ये आपका प्रेशर P1 था, राइट। तो जैसे जैसे फ्लो आपका जो है मूव करता जा रहा है, प्रेशर आपका क्या है, दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और जहाँ पे जैसे इसने क्रॉस सेक्शन 2 को क्रॉस किया तो आपका प्रेशर जो है P2 है, यू अंडरस्टैंड। तो जहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आप ले लीजिए, सपोज इसको P1, जहाँ पे P1 ले लीजिए, P2, तो ये अगर वी विल प्लॉट हियर, तो ये आपका हो गया P1, और ये अगर आपका ये है, ये वाला, दिस इज योर P2, right? So we can say that in the fully developed region, हमने जो fully developed आपका region लिया, right? So from here, because in developing region, we don't know the status of the pressure here. We are not discussing here. But when we come to the fully developed region, and I have just taken the two cross section, कि at cross section जो 1 था उसके ऊपर जो प्रेशर है, दिस इज P1, और क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर आपने देखा कि जो आपका प्रेशर है दैट इज P2, एंड P2 दिस इज लेस देन P1. So you can say pressure is decreasing linearly in case of fully developed flow. You understand? Because due to the viscous effect also, you know that due to the viscous effect, what happens that the pressure is consumed by the flow to push it forward in the pipe. तो जो प्रेशर होगा कि विस्कस इफेक्ट से क्या होगा कि जो उसका प्रेशर है वो फ्लो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसको आगे मूव करने में धक्का मारे, उसको सहायता मिले, आगे मूव करे. यू अंडरस्टैंड? तो डेफिनेटली क्या आपका होगा कि हमारा जो प्रेशर है, देन द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द डेवलप्ड रीजन इन द पाइप, सो द प्रेशर दैट वेरीज लीनियरली. ये P1 से P2 वेरी करेगा, और जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा इसका, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, सपोज अगर आप ये जहाँ से लेके ये आपका जो डिस्टेंस ये आपका x है, तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा माइनस डेल P अपॉन डेल x. माइनस क्यों? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली. सो प्रेशर ग्रेडियंट इस केस में, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा. प्रेशर ग्रेडियंट is negative, and the pressure keeps on decreasing linearly. तो प्रेशर जो होगा इसमें लीनियरली डिक्रीज होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? प्रेशर ग्रेडियंट हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस डेल P अपॉन डेल x. यू अंडरस्टैंड? तो ये प्रेशर वही आ गया कि प्रेशर आपका फुली डेवलप्ड रीजन में प्रेशर का हमारा स्टेटस क्या होगा, दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप. अगर इफ आई से दैट x इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड दिस इज द फुली डेवलप्ड रीजन, तो प्रेशर आपका जैसे जैसे फ्लूइड जो है x डायरेक्शन में मूव करेगा, तो प्रेशर जो फ्लूइड का है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग and that keeps on decreasing linearly. You understand? वो डिक्रीज करेगा लीनियरली, और जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा इस केस में वो आपका क्या होगा, इट इज हैविंग द नेगेटिव वैल्यू. तो दी थिंग्स आर क्लियर. प्रेशर का बारे में स्टेटस हमें पता चला. अब देखिए वेलोसिटी का हम देखते हैं. हम नेक्स्ट देखेंगे
behavior of velocity of fluid flowing in the pipe in developing region में and fully developed region में क्या होगा। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वेलोसिटी को भी हम चेक कर लेते हैं कि वेलोसिटी का क्या बिहेवियर होगा, whether the velocity is same in the developing region and developed region, or you can say velocity is different। तो ये आपकी पाइप है, राइट, तो ये आपका डेवलपिंग रीजन है और ये आपका आगे वाला डेवलप रीजन है। तो दिस इज योर डेवलपिंग रीजन, मैं कहता हूँ डेवलपिंग रीजन में वेलोसिटी आपकी क्या थी, v1 है। लेट द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द डेवलपिंग रीजन, तो वेलोसिटी इज v1। ये हो गया, एक क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। और दूसरा ये आपका जो डेवलपिंग रीजन है, मैं कहता हूँ ये सेकंड क्रॉस सेक्शन है, इसमें वेलोसिटी आपकी v2 है। लेट अस से नाउ वी हैव टू सी दैट वेदर द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो जैसे हमने एज आई टोल्ड यू that there are the two parts in that, one is the developing region and second one is the fully developed region, you understand। ये लिख लो यहाँ पे, ये आपका हो गया developed region, you understand। तो हमें ये देखना है कि क्या फ्लूइड जब पास करेगा डेवलपिंग रीजन से और डेवलप रीजन से, तो जो उनकी वेलोसिटी है क्या वो सेम होगी, या वेलोसिटी में कोई चेंज होगी, वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। तो इसको हम भी देख लेते हैं, जैसे हमने प्रेशर को देखा। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अज्यूम करते हैं हम फ्लूइड जो है, फ्लूइड जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, स्टेडी एंड इन compressible, steady and incompressible fluid, you understand। फ्लूइड हमने क्या assume किया, steady and incompressible fluid। अब for steady flow you can say, for steady fluid, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू चेक द वेलोसिटी इन द डेवलपिंग रीजन, और यू कैन से इन दिस क्रॉस सेक्शन इन द डेवलपिंग रीजन द वेलोसिटी इज v1 and the velocity v2 that is in the cross section of the developed region। we have to find whether these two velocities are equal, or v1 is greater than v2, or v2 is greater than v1, or v1 is equal to v2। So for that we have taken that steady and incompressible fluid, mostly that we take is flowing through the pipe, right। तो for steady fluid क्या होगा, जो आपका mass flow rate है for steady fluid, the mass flow rate of the fluid is same। तो पहली बात है for steady fluid के लिए mass flow rate is same for any cross section, for any cross section, किसी भी क्रॉस सेक्शन या रीजन के लिए ले लीजिए, for any cross section mass flow rate is same। कहने का मतलब है m, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो मास फ्लो रेट फॉर एनी क्रॉस सेक्शन। सो हमने यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन लिए हैं, एक ये वन क्रॉस सेक्शन है, ये आपका टू क्रॉस सेक्शन है। सो यू कैन से दैट मास फ्लो रेट फॉर द क्रॉस सेक्शन नंबर 1
and cross section number 2 is same. This is the condition of the steady flow. Mass flow rate is same. इन द पाइप भी कर लीजिए. तो पहली कंडीशन तो ये आ गई, मास फ्लो रेट आपका सेम है. यू अंडरस्टैंड. सेकंड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. फ्लूइड हम कौन सा ले रहे हैं? इनकम्प्रेसिबल. तो आ गया फॉर इनकम्प्रेसिबल, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डेंसिटी डजंट चेंज. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट. रिमेन कांस्टेंट. जो आपकी रो की वैल्यू होगी, चाहे वो डेवलपिंग रीजन से फ्लो करता है, जहाँ डेवलप रीजन से फ्लूइड फ्लो करेगा, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? रो आपका कांस्टेंट रहेगा, रो आपका चेंज नहीं होगा. राइट? यू अंडरस्टैंड दिस. और तीसरा हमने जो ये पाइप लिया है, दिस पाइप इज हैविंग ए यूनिफॉर्म डायामीटर. राइट? इसका डायामीटर क्या है? पाइप का यूनिफॉर्म है. डायामीटर ऑफ द पाइप ऊपर लिख लेते हैं. ये दो कंडीशन हो गई. थर्ड, diameter of pipe is uniform. Therefore एरिया क्या होगा? A1. अगर एरिया मैं कहता हूँ A1 इसका है, दिस इज इक्वल टू A2 एंड दिस इज इक्वल टू A. तो एरिया भी तो सेम होगा. राइट? दैट इज सेम. लिख लीजिए, एरिया भी आपका क्या होगा? सेम होगा. यू अंडरस्टैंड. ये तीनों कंडीशंस हैं. अब मुझे बताइए, मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है? रो इंटू ए इंटू बी. मास फ्लो रेट, दिस इज इक्वल टू रो इंटू ए. मास फ्लो रेट रो इंटू ए इंटू बी. राइट? देयरफॉर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाई रो इंटू ए. वेलोसिटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट. जाइए, आप जहां से देख लीजिए, आप जी आप नोट कर लीजिएगा. फॉर फ्लूइड स्टडी एंड इनकम्प्रेसिव फ्लूइड हमने लिया, तो फॉर स्टडी फ्लूइड के लिए क्या होगा? आपका मास फ्लो रेट इज सेम फॉर एनी क्रॉस सेक्शन इन द पाइप. तो मास फ्लो रेट भी आपका सेम है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड भी सेम है, और एरिया भी आपका क्या है? एरिया इज आल्सो सेम. ये मैंने लिखा ना, एरिया भी आपका सेम है. जब ये सारी चीज़ें सेम है, मास फ्लो रेट है सेम है रहेगा, डेंसिटी जो फ्लूइड की है वो उसका सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एरिया जो पाइप का है वो कांस्टेंट रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वेलोसिटी है थ्रू आउट द पाइप वो भी तो सेम रहेगी. यू अंडरस्टैंड. वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन द पाइप और थ्रू आउट द पाइप, द वेलोसिटी विल आल्सो रिमेन सेम. whether it is flowing in the developing region or whether it is having the developing region or developed region. So you can say that the velocity in the developing region, which is V1, and the velocity which we have taken in the developed region, this is V2. So velocity is same throughout the pipe. So you understand the condition in the fully developed flow. फुली डेवलप फ्लो में आपका वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. जो वेलोसिटी आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी स्टार्टिंग में होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी
वो ही आपकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी. यू अंडरस्टैंड दैट. इनिशियली इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v1, वेदर इट इज ए डेवलपिंग रीजन और इट इज ए developing region है, and after that you will get the developed region, but the velocity will not change. Velocity will remain same. तो ये आप कंक्लूजन इसका लिख लीजिए. इसमें ये भी कंक्लूजन आपका आ गया. In fully developed the velocity in fully developed region that will be same to the velocity in developing region. The velocity of the fluid कर लीजिए. That will be the same to the velocity in the developing region of pipe flow. समझ आ गया. अगर B1 इज द वेलोसिटी ऑफ द डेवलपिंग रीजन है, B2 आपकी वेलोसिटी डेवलप रीजन है, तो आप कह सकते हैं therefore B1 this is equal to B2 and this is equal to B. तो ये चीज़ क्लियर होगी. ये कोई भी कंसेप्ट आपको पूछे कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड in the developing region and in the developed region, is there any effect to the velocity? So you can say that there is no effect to the velocity of the fluid, whether it is flowing in the developing region or whether it is flowing in the developed region. There is no change in the velocity will remain same. So you understand. तो ये आपको ये भी एक कंडीशंस थी वेलोसिटी की, वो भी हमने चेक कर ली कि जो आपकी वेलोसिटी की कंडीशन है, राइट. सो कंडीशन लिया था हमने फॉर फुली. कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन ली थी हमने फ्लूइड क्या होना चाहिए? स्टडी. फ्लूइड आपका स्टेडी हो एंड इनकम्प्रेसिबल हो. ये भी चीज़ याद रखनी है. स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किया जो कंडीशन हमने अज्यूम किया था कि अगर आप जब ये फ्लूइड होगा तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B. तो वेलोसिटी भी हमने चेक कर लिया. अब देखिए एक्सेलरेशंस को भी देखते हैं हम, राइट. So next is acceleration for steady and incompressible flow. When it is flowing through the pipe, right?
तो एज हमने क्या किया पाइप में, लेट अस से the flow in the pipe in x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में आपका फ्लो है पाइप का। तो ये आपकी 3 डायरेक्शंस हैं। ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपकी y डायरेक्शन है, एंड दिस इज योर z डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये आप लिख लीजिए x डायरेक्शन। x डायरेक्शन की वेलोसिटी u है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v है, fz, राइट। सो वी हैव 3 component of the direction: x direction, y direction, and z direction. And you can say the flow is in the x direction. You understand? Flow आपका क्या है? In the x direction. तो जो acceleration होगी ax, ये क्या होगी? q into del u upon del x plus b into del u upon del y plus w into del u upon del z plus u into del u upon del t। plus del u upon del t, right? This is the equation in the x direction. अब देखिए, ध्यान से देखिए, द फ्लो इन द पाइप इन x डायरेक्शन। तो फ्लो आपका जो पाइप में है वो किस में है? x डायरेक्शन में है। तो जब फ्लो आपका पाइप x डायरेक्शन में होगा तो b जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है वो भी 0 होगी, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन भी 0 होगी। और ये जो आपका ये जो आपका स्टडी फ्लो है, हमने कंडीशन क्या लिया था? स्टडी फ्लो है। तो इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, del u upon del t, this is also equal to 0। del u upon del t भी 0 होगा, b भी 0 होगा और w भी 0 होगा। और पीछे आपने कंडीशन पढ़ा था, when the flow is in the x direction, in x direction the flow doesn't change, right? तो उस केस में क्या था, वो भी कंडीशन पढ़ी थी हम, del u upon del x, this is equal to 0। ये कंडीशन पढ़ा था हमने। when the fluid is flowing in the x direction, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेमिनर फ्लो है, तो उस वक्त क्या है कि x डायरेक्शन में फ्लो आपका वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा। जो इसकी वेलोसिटी है del u upon del x, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी इन x डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हैं del u upon del x इज इक्वल टू 0। तो अगर ये सारी कंडीशन इसमें मैं पुट करूं, ax u तो रहेगा, del u upon del x 0 हो गया, प्लस 0 b क्या है? 0 है, तो del u upon del y प्लस w भी 0 है, del u upon del z और del u upon del 2 del t फॉर स्टडी फ्लो, ये आपका 0 होता है, राइट। सो देयरफॉर ax इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, याद रखिएगा, acceleration in x direction in fully developed flow, that is equal to 0। acceleration in x direction in fully developed flow, that is 0। so you can say no acceleration in x direction। तो इसका मतलब है
जहाँ तक चीज ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि द एवरेज वेलोसिटी जो है, ये पीछे भी हमने प्रूव किया था और इससे भी हो गया, द एवरेज वेलोसिटी remain same at every cross section. Average velocity that will remain same at ठीक है। अब अगर यहां से मैं कहता हूं कि नेट फोर्स जो आपकी होगी, अगर दूसरे तरीके से प्रूव करें हम, तो नेट फोर्स क्या होगी? जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। और जो नेट फोर्स है दैट इज किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां पे लिख लीजिए तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट। तो नेट फोर्स जो है that is equal to rate of change of linear momentum. Net force that is equal to rate of change of linear momentum. क्या इसको नेट फोर्स को अभी हम नहीं लिखेंगे, नेट फोर्स है सिग्मा एफ एक्स, बाद में प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ change of linear momentum, right? So this is equal to linear momentum क्या होगा? मैं कहता हूं कि m इसका मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो हो गया m मास फ्लो रेट ले लीजिए अब m, ठीक है। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, मैं कहता हूँ बी एफ एक्स ले लो इन एक्स डायरेक्शन, एंड फाइनल वेलोसिटी, अब ये इनिशियल वेलोसिटी ले लो, राइट। बट एज यू नो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास फ्लो रेट, फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी। बट जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बी एफ एक्स दिस इज इक्वल टू बी एफ आई, ये तो आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? बी एफ एक्स माइनस बी एफ आई दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू रेट 0। अगर सिग्मा एफ एक्स 0 आ गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? यहां से सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू 0। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी हमने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन जो आपकी एक्स डायरेक्शन में होगी वो क्या होगी, 0। तो ये सारी आपका फुली डेवलप्ड फ्लो के ऊपर था। तो व्हाट इज द फुली डेवलप्ड फ्लो, उसमें हमें क्या क्या कंडीशंस मिलेंगी। फुली डेवलप्ड फ्लो, तो सबसे पहली बात है कि फुली डेवलप्ड फ्लो दैट इज you can say that is having the same velocity profile, or you can say there is having the well defined velocity profile तो यू कैन से दैट उसमें क्या आपको मिलेगा कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वेल डिफाइन होगा, जो फ्लो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, रैंडम वेलोसिटी उसमें क्या होगी, 0 होगी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन नहीं होगी। और ये फ्लो हमें कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जब फ्लूइड जो है पाइप से फ्लो करेगा इनिशियली, और यू कैन से एट द एंट्रेंस द फ्लो इज नॉट फुली डेवलप्ड, द फ्लो इज in the developing region, that is not fully developed in the developing region. So it means that we require some distance from length of the pipe, or the fluid particles they require some length of the pipe. So after that the flow start becoming fully developed, you understand। और जो डेवलपिंग रीजन और फुली डेवलप रीजन का मतलब क्या होगा कि डेवलपिंग रीजन में आपका फ्लो जो होगा वो डेवलप नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड द डेवलपिंग रीजन। और जो लेंथ है अप टू दैट लेंथ और डिस्टेंस जहाँ तक हमें डेवलपिंग रीजन मिलेगा, और यू कैन से अप टू दैट लेंथ, जिसके बाद हमारा फ्लो जो है वो डेवलप होगा, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, एंट्रेंस लेंथ बोलते हैं। दैट लेंथ इज नोन एज द एंट्रेंस लेंथ। डेवलपिंग रीजन में मैंने आपको बता दिया कि डेवलपिंग रीजन में क्या होगा कि जो आपका फ्लो होगा वो स्टेबलाइन नहीं होगा, वेलोसिटीज जो है रैंडम होगी, इसलिए हमें वेल डिफाइंड आपका वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं मिलेगा। बट व्हेन द फ्लो एंटर्ड, और व्हेन द फ्लो वी कैन से दैट इज अ फुली डेवलप्ड फ्लो, द फ्लो दैट इज इन द स्ट्रीमलाइन इन द लैमिना, there is no random velocities of the fluid particles which are moving, or you can say that the velocity in y direction and the velocity in the z direction that is equal to 0, and we will get the well defined velocity profile as we are taking the laminar flow through the pipe। so well defined velocity profile क्या होगा, जहाँ पे पैराबोलिक होगा। बट जो आपने देखा जो आपका डेवलपिंग रीजन था वहाँ पे यू विल नॉट गेट द वेल डिफाइंड वेलोसिटी प्रोफाइल, दैट इज नॉट एग्जैक्ट पैराबोला, इट इज जस्ट यू कैन से जिगजैग टाइप ऑफ फिगर था, यू अंडरस्टैंड दैट। तो वी गॉट दैट। अब उसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी कि अगर फुली डेवलप्ड फ्लो में हमारा प्रेशर क्या है, तो जो प्रेशर का स्टेटस होगा वो क्या होगा कि एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में जैसे जैसे फ्लो मूव करता जाएगा इन द एक्स डायरेक्शन, तो आपका जो प्रेशर है इन द एक्स डायरेक्शन हमारा जो है दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होता जाएगा, और जो प्रेशर ग्रेडियंट हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, उसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसके साथ हमें फुली डेवलप्ड फ्लो में वी हैव गॉट द कंडीशंस, क्या मिला हमें, डो यू अपॉन डो एक्स दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में आपका फ्लो था दैट डजंट चेंज, वो वेरी नहीं होगा, वो आपका स्मूथली मूव करेगा। बट द फ्लो इन द वाई डायरेक्शन एंड द जेड डायरेक्शन दैट इज 0, or you can say the fluid particles they are not having the random velocity in the y direction and z direction। तो एक कंडीशन हमें मिला था dou u upon dou x is equal to 0, u doesn't equal to 0, b equal to 0 and w equal to 0, right? So this condition we have got, right? Next, अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें कि व्हाट इज सपोज एक डेवलपिंग रीजन है, पाइप में डेवलपिंग रीजन बनेगा और एक आपका डेवलप रीजन होगा व्हेन द फ्लो विल पास थ्रू द पाइप। सो वी मस्ट नो दैट द वेलोसिटी इन द डेवलपिंग रीजन एंड द वेलोसिटी इन द डेवलप रीजन, देयर इज नो चेंज इन दैट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विल रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। वेलोसिटी में वेलोसिटी प्रोफाइल में चेंज होगा, आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो चेंज होगा, वो वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा जो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपका
फुली डेवलप फ्लो में मिलेगा। वो पैराबोलिक होगा, बट जो डेवलपिंग रीजन में होगा वेलोसिटी प्रोफाइल वो पैराबोलिक नहीं होगा। बट जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, वो सेम होगी। अगर डेवलपिंग रीजन में वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो जब फ्लूइड जो है आपका डेवलप रीजन में पहुंचेगा तो वहां पर भी वेलोसिटी आपकी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी। देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हमने अभी देखा कि ये जो फुली डेवलप फ्लो है उसमें फ्लो में उसकी जो वेलोसिटी उसकी जो एक्सेलरेशन है, देयर इज नो एक्सेलरेशन दैट, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, सीधी बात है। एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। और जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या रहेगी, मेन सेम रहेगी, तो इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इन द फुली डेवलप फ्लो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके कंसेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दे कैन आस्क यू द कंडीशन, दे कैन आस्क दिस, व्हाट इज द डिफरेंस इन द डेवलपिंग रीजन और द डेवलप रीजन, व्हाट इज योर एंट्रेंस लेंथ, और अदर कंडीशंस आल्सो फुली डेवलप फ्लो की क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग आल्सो। वी मस्ट नो दैट दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। हमें पता होना चाहिए कि जब फ्लो किसी पाइप के बीच में से फ्लो निकलता है तो उसमें हम तो यही अज्यूम करते हैं एज ए लेमैन कि ये फ्लो जो है वो एक ही डेवलप फ्लो है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बट टेक्निकली ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इसमें जब पाइप में फ्लो होता है तो इनिशियली फ्लो जो है फुली डेवलप नहीं होता और उसके बाद धीरे धीरे फ्लो डेवलप होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मेरा आप लोगों से दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स आर द फ्रेंड्स हु आर सीइंग माई लेक्चर्स, वाचिंग माई लेक्चर्स, दे शुड इसे शेयर करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड यू विल गेट ए वेरी गुड कंसेप्ट देयर। आपको अच्छे कंसेप्ट इसमें मिलेंगे एज पर योर सिलेबस। टॉपिक्स जो भी हैं उसमें सारे कंप्लीट चीज़ें आपको मिलेंगी। बट ये मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसे जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स में। So thank you very much.